Dear students, hello, how are you? In the last class I gave you some homeworks and I am sure that almost all of you would have completed your homework. So before I start today's lecture, I would like to tell you that you have to check your homework first and thereafter we shall start today's class. So let us start. In the last class, I gave you 3 practice works from future indefinite and 3 from future perfect. First, I would like to start from future indefinite. तुम उसे पढ़ाओगे. Its active will be you will teach him. Let me repeat. You will teach him. Its passive will be he will be taught by you. He will be taught by you. And let me change this one into all 6 forms. You will teach him. He will be taught by you. You will not teach him. He will not be taught by you. Will you teach him? Will he be taught by you? Will you not teach him? Will he not be taught by you? When will you teach him? You can choose any other WH question. When will you teach him? When will he be taught by you? And why will you not teach him? So why will he not be taught by you? I have changed into 6 forms of very first question. And the remaining 2 questions I would not change into 6 forms, but I hope that you will understand this one. तुम्हारा भाई मेरी मदद करेगा. Your brother will help me. Your brother will help me. This is active. And its passive is I shall be. As I told you in the last class, along with I and we, you have to use shall. So I shall be helped by your brother. Let me repeat once again. Your brother will help me. Passive. I shall be helped by your brother. The third question is सरकार यह कार्यक्रम चलाएगी. The government will run this program. The government will run this program. Its passive will be this program will be run. As you know, that V3 form of run is run itself. RUN, run V1, RAN, ran V2, and RUN, run V3. So the government will run this program. This program will be run by the government. These 3 questions were from future indefinite. And in future perfect, we have to understand 3 questions as well. वह यह बात भूल गया होगा. Its active form is he will have forgotten this matter. He will have forgotten this matter. And its passive will be this matter will have been forgotten by him. Negative, he will not have forgotten this matter. Its passive will be this matter will not have been forgotten by him. Interrogative, will he have forgotten this matter? Its passive, will this matter have been forgotten by him? Interrogative negative, will he not have forgotten this matter? Its passive, will this matter not have been forgotten by him? WH, as I always tell you, you can choose any WH. It is not necessary to follow me. It is not necessary to follow the same WH as I always tell you. You can choose any other WH as well.
but here I am choosing how will he have forgotten this matter. Its passive will be how will this matter have been forgotten by him. And last one, how will he not have forgotten this matter? How will this matter not have been forgotten by him? Remaining two are, तुमने मुझे बुलाया होगा. You will have called me. You will have called me. Passive, I shall have been called by you. I shall have been called by you. And I hope that you would have changed this one into 6 forms. And the last one, मेरे पिताजी ने उसे देखा होगा. My father will have seen him. My father will have seen him. He will have been seen by my father. He will have been seen by my father. That's all. These were last class homework. And today we have to understand modal auxiliary verbs. You have been informed that there will be only 8 tenses which will be changed into 6, which will be changed into passive forms. And I completed all tenses in the last class, in the last lecture. Today we are going to understand the modal auxiliary verbs and its passive. Before I start making you understand all those things through the board, I would like to ask you, how many of you understand modal auxiliary verbs? I am 100% sure that many of you, almost most of you, can, could, should, must, used to, shall be able to, will be able to. The book which I have given you starts with the same thing, can, could, should, etc. etc. They are modal auxiliary verbs. So today we are going to understand the passive form of modal auxiliary verbs. So let us understand how to do it. Look at the board and try to understand what I have written. First of all, try to understand the structure. The structure is object of active, modals, V3 by subject of active. I have written here modals. Modals means you can put here any other modal. Either it is can, could, should, must, used to, whatever it be. So, I have given here 2 different examples as well to make you understand it properly. So, let us check. तुम्हें उसके साथ खेलना चाहिए. तुम्हें उसके साथ खेलना चाहिए. How will you translate? You will translate, you should play with him. Your translation is, you should play with him. See, the passive. According to our structure, first of all, we have to write the object of active. What is the object of the active in this sentence? You is the subject, should is the modal auxiliary verb, play is the verb with preposition, and him is the object. अब आप हिम को जब आगे ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? वो तो अब आप जादूगर हो गए उसको आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से समझते हो. तो हिम आगे जाकर के क्या बना? ही. फिर क्या लिखना था? जो मॉडल्स है एग्जाम में जैसे शुड दिया रहेगा तो शुड ही लिखो, कैन दिया रहेगा तो कैन ही लिखो, जो मॉडल्स दिया हुआ है. तो यहाँ क्या है? शुड. तो ही शुड बी, ही शुड बी. वर्ब क्या था? प्ले. प्ले का तीसरा रूप क्या था? प्लेड. और आप सब लोग बार बार सुनते आ रहे हो कि अगर पहले से प्रीपोजिशन है क्रिया के बाद तो वो प्रीपोजिशन रखेंगे तब बाय लगाएंगे. तो यहाँ प्ले के साथ क्या था? विथ. यहाँ पे हमने क्या किया? ही शुड बी प्लेड विथ, तब क्या लगा? बाय. और लास्ट में सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव. तो सब्जेक्ट क्या था? यू. यू का जब जानते हो आगे हो या पीछे यू ही रहता है, वो बदलता नहीं है. अगला क्वेश्चन है, अंकित यह बात समझ सका. आप सबको पता है जब वाक्य के अंत में सका, सके, सकी या पाया, पाए, पाई रहता है तो कुड लगाते हैं. तो इसका ट्रांसलेशन क्या बना आपने? अंकित कुड
अंडरस्टैंड दिस मैटर। अंकित कुड अंडरस्टैंड दिस मैटर। अब हम इसकी पैसिव बना रहे हैं, नियम के हिसाब से ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे। जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मैटर, तो लिखा दिस मैटर। फिर जो कहता है जो मॉडल्स आपने यूज किया वो लिखो, तो मॉडल्स क्या था, कुड, तो लिख लिया कुड। फिर क्या लगाना था, V3 करना है, अंडरस्टैंड का तीसरा रूप क्या होगा, अंडरस्टूड बाय। और नाम कभी नहीं बदलता है, आगे का जो रहेगा वही पीछे जाएगा या पीछे जो रहेगा वही आगे, नाम नहीं बदलेगा। तो अंकित का अंकित लिख दिया। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आज हमने एक एग्जाम्पल लिया है, बनाया है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप घर पर कम से कम बोर्ड को देखो। अच्छा, बहुत सारे लोग एकदम उड़ते रहते हैं, खाली आधा में ही लेक्चर पढ़ लिया और भागे, हो गया काम खत्म। हड़बड़ी का काम गड़बड़ हो जाता है। हड़बड़ी मत किया कीजिए, ठीक से लेक्चर को सुना कीजिए, लास्ट तक समझने की कोशिश कीजिए। 15-20 मिनट आप पेशेंस नहीं रख सकते हो, आराम से रख सकते हो। क्लास में 1 घंटा रखते थे तो क्लास में बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी जिसमें 1 घंटा लग जाता था। लेकिन अभी आपको 20 मिनट का पेशेंस रखना, 20-22 मिनट पेशेंस रखना, उसमें समझना क्या है। तो लास्ट में देखिएगा, वीडियो के लास्ट में स्क्रीनशॉट रहता है, तो स्क्रीनशॉट को आप उसको स्थिर से आप कॉपी में उतार लिया कीजिए और उसको समझने की कोशिश किया कीजिए कि कैसे सर बनाया। तो देखिए, तो मैंने आज एग्जाम्पल लिया क्या, वह तुम्हें चिढ़ाया करता था। जिन लोगों ने क्लास में अच्छे से मॉडल्स पढ़ा है उनको मालूम है चिढ़ाया करता था। आ करता था, ए करते थे में हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू एक मॉडल है। तो वह तुम्हें चिढ़ाया करता था, तो आपने क्या बनाया ट्रांसलेशन इसका, ही यूज्ड टू, चिढ़ाना का टीच होता है, ही यूज्ड टू टीच यू। अब देखेंगे नीचे हमने उसी को 6 रूपों में बनाया है। वह तुमको चिढ़ाया करता था तो बनाओगे ही यूज्ड टू टीच यू। वह तुमको नहीं चिढ़ाया करता था तो ही यूज्ड नॉट टू टीच यू। हम इसलिए 6 रूप में कि कई दफा कंफ्यूजन आपके मन में हो सकता है। मेनी टाइम्स यू माइट बी कंफ्यूज वेयर टू पुट नॉट। क्या यूज टू के बाद नॉट लगावे, यूज टू के बीच में नॉट लगावे, कहाँ लगावे, तो वो कंफ्यूजन। अगर हम एक ही रूप में लिख दिया करते तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती, इसलिए हम 6 रूप में लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ही यूज टू टीच यू, वह तुमको नहीं चिढ़ाया करता था, ही यूज्ड नॉट, तब टू, ही यूज्ड नॉट टू टीच यू। क्या वह तुम्हें चिढ़ाया करता था, यूज्ड ही टू टीच यू। क्या वह तुम्हें नहीं चिढ़ाया करता था, यूज्ड ही नॉट टू टीच यू। वह तुम्हें क्यों चिढ़ाया करता था, क्यों, कोई भी WH चुनेगा। वाई यूज्ड ही टू टीच यू, और वह तुम्हें कैसे नहीं चिढ़ाया करता था, हाउ यूज्ड ही नॉट टू टीच यू। इस तरह से हमने एक्टिव को 6 रूपों में बदला। अब हम उसकी पैसिव समझेंगे। पहला था ही यूज्ड टू टीच यू। अब हमको कहा गया इसका पैसिव बनाओ, तो नियम के हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना है, आगे ले गए यू, यू के साथ देखिए ऊपर देखते हैं। फिर क्या लगाने के लिए कहा गया मॉडल्स लगाओ, तो मॉडल्स क्या था, यूज टू, तो यूज टू लिख दिए। फिर मॉडल्स के बाद क्या लगाना था, बी, लिखे बी। फिर क्या लिखना है, V3, तो भर क्या है, टीच, चिढ़ाना, टीच का तीसरा रूप क्या होगा, टीज्ड। फिर क्या लिखना, बाय, लिख लिया बाय। लास्ट में सब्जेक्ट को लिखने के लिए, तो सब्जेक्ट क्या था, ही, लेकिन ही जब पीछे जाएगा तो क्या बन जाएगा, हिम। और देखेंगे नीचे उसी को हमने 6 अलग अलग रूपों में बदला है। इधर एक्टिव 6 रूप, इधर उसी का पैसिव 6 रूप बना है। आराम से आप देख करके ही ये बात समझ जाओगे कि कैसे हमको बनाना है। आज मैंने आपको 4 होमवर्क दिया है, वो घर पर बनाइएगा। वह रतन के बारे में बता सकता है। आप सबको पता है के बारे में के लिए अबाउट का प्रयोग करते हैं, तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा, ही कैन टेल अबाउट रतन, ही कैन टेल अबाउट रतन। अब इसका पैसिव आप बताओ, बनाओगे। दूसरा है, तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। सेंटेंस में जब अवश्य भी रहे और चाहिए भी रहे तो मस्ट का प्रयोग कीजिए। यानी इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए, तो यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क। और पैसिव में दिस वर्क को आगे ले जाएंगे। अब मैं नहीं, जो इसी स्ट्रक्चर पर बनाइएगा। मैं उसे पढ़ाया करता था, फिर आगे आ करता था, जो अभी हम ऊपर में बनाए हैं, तो क्या बनाइएगा, आई यूज्ड टू टीच हिम। टीच नहीं, टीच मतलब चिढ़ाना होता है, टीच पढ़ाना। आई यूज्ड टू टीच हिम। लास्ट में है, रवि को उसके साथ खेलना चाहिए।
तो चाहिए रहेगा तो शुड, अवश्य चाहिए रहे तो मस्ट, और खाली चाहिए तो शुड। तो रवि शुड प्ले विथ हिम के साथ है तो विथ लगाना पड़ेगा, रवि शुड प्ले विथ हिम, और उसका आप पैसिव बनाइएगा। यही तो था, और तो कुछ ऐसा है नहीं। मॉडल्स तो बड़ा ही आसान है, इसको कोई हवा बनाने की जरूरत ही नहीं है। आगे के क्लास में हम लोग मिस्ड एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और लास्ट क्लास होगी जो कुछ उटपटांग सारी चीजें होती है, एक्सेप्शन वगैरह होता है, बड़ा माथा खराब हो रहा है, ये कहाँ से टू घुस गया, ये बाय कहाँ उड़ गया, ये सारी चीजें हैं। वो बहुत दमखम वाली चीजें नहीं है। दमखम इसलिए आपको लगती है कि आपको मालूम नहीं है, जैसे ही मालूम होगा तैसे कहोगे ये तो बहुत आसान है। जो मेन लफड़ा था वो तो हम लोग पहले पढ़ लिए। तो वो रिमेनिंग 2 क्लास, आने वाले 2 क्लासेस में हम लोग को रैप अप कर देना है एक्टिव पैसिव को। फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक्टिव पैसिव ठीक से समझ पा रहे हो, और इनकेस नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे इन्फॉर्म करते रहो, जैसे भी हो, जिस माध्यम से भी हो, मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहो कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें इसको क्लियर करवाइए, ताकि मैं उसको और बेहतर ढंग से आपको समझा पाऊं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।